کیا آپ نے کبھی سنا ہے اس بچے کے بارے میں جو کھیلتے کھیلتے غیب کی آوازیں سن لیتا، ڈر کر ماں کی گود میں چھپ جاتا اور مدرسے میں فرشتے اس کے لیے جگہ بنا دیتے؟ جوانی آتی ہے تو اچانک ایک بیل بول اٹھتا ہے، تم اس کے لیے نہیں بنائے گئے، اور بغداد کے سفر میں جب ڈاکو اسے گھیر لیتے ہیں تو وہ ماں کی نصیحت پر سچ بول کر سب کو دنگ کر دیتا ہے۔ یہی بچہ جلیبی والے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ دوستوں، یہ ہیں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہستی جن کی کرامات سن کر آج بھی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے اور دل یقین سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین، حضور محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت کئی واقعات ظہور میں آئے۔ آپ کی ولادت کی رات آپ کے والد محترم نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور اولیاء کے ہمراہ تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے صالح فرزند عطا فرمایا جو میری نسل سے ہے، وہ میرا اور اللہ رب العزت کا محبوب ہے اور اولیاء میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ حقیقت میں حیرت انگیز ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی رات صوبہ جیلان میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ اس رات صرف لڑکوں کی پیدائش ہوئی، جن کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ مزید یہ کہ اس رات جتنے لڑکے پیدا ہوئے وہ سب ولی کامل بنے۔ یہ بھی آپ کی ولادت کی کرامت اور برکت تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ہاں عبد القادر پیدا ہوئے تو رمضان المبارک شروع تھا۔ عبد القادر اس ماہ مقدس میں دن کے وقت کبھی میری چھاتی سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ اتفاقاً ایک بار بادل کی وجہ سے رمضان کے چاند میں شک پڑ گیا۔ قریب کے چند آدمیوں نے مجھ سے پوچھا، سیدہ، کیا آپ کو چاند کی کوئی صحیح اطلاع ملی ہے؟ میں نے کہا، آج میرے عبد القادر نے دن کے وقت دودھ نہیں پیا، اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ کچھ عرصہ بعد تصدیق ہوئی کہ اس دن رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ پھر یہ بات شہر میں مشہور ہو گئی کہ سعادت میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ابھی ہوش نہیں سنبھالا تھا کہ اچانک آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ یوں آپ بچپن میں ہی والد کے سائے شفقت سے محروم ہو گئے۔ چونکہ اس وقت آپ کے نانا حضرت سید عبداللہ اسومی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، اسی لیے انہوں نے آپ کی پرورش، تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بچوں کے ساتھ بالکل نہیں کھیلا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا تو غیب سے ایک آواز سنائی دیتی، اے خدا کی برکت دیے ہوئے، میری طرف آ، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، لا و لب کے لیے نہیں۔ یہ آواز سن کر میں ڈر جاتا اور بھاگ کر میں اپنی ماں کے گود میں جا بیٹھتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 10 سال کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا تو آپ نے فرمایا، مجھے اپنے ولی ہونے کا علم 10 برس کی عمر میں ہوا۔ میں جب مکتب آتا تو راستے میں ملائکہ میرے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیتے، اور جب میں مدرسے پہنچتا تو انہیں بار بار یہ کہتے سنا کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ جب حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی عمر 18 سال ہوئی تو آپ نے علم کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ اس کی وجہ آپ نے خود یوں بیان کی، ابتدائی عمر میں ایک بار میں عرفات سے باہر نکلا، اتفاقاً راستے میں ایک زمیندار کا بیل جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ بیل نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے عبد القادر، تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ تجھے اس کا حکم دیا گیا۔ یہ سن کر میرے دل میں محبت الہی کے جذبے اور شوق نے زور مارا۔ میں سیدھا گھر پہنچا اور والدہ محترمہ کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو علم کے حصول کے لیے بغداد چلا جاؤں۔ ساتھ ہی بیل کا معجزہ بھی سنایا۔ یہ سن کر میری والدہ اٹھی اور 80 دینار جو میرے والد سے انہیں ملے تھے وہ میرے پاس لائیں۔ میں نے اس میں سے 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے، باقی 40 والدہ نے میری گدڑی میں بغل کے نیچے سل دیے۔
फिर दुआ करते हुए फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि हमेशा सच बोलना और कभी झूठ मुंह से ना निकालना। उसके बाद मेरी वालिदा मुझे रुखसत करने के लिए बाहर आई और एक सर्द सांस खींचकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, वही तेरा हाफिज व निगहबान है। वालिदा से रुखसत होकर मैं बगदाद जाने के लिए एक काफिले के साथ हो लिया। जब ये काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो अचानक 60 डाकू हम पर टूट पड़े और काफिले का तमाम माल व असबाब लूट लिया, मगर किसी ने मुझसे कुछ न पूछा। थोड़ी देर बाद एक डाकू मुझे देखकर वापस लौटा और कहा, तेरे पास भी कुछ है? मैंने सच सच कहा कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। वो इसे मजाक समझकर चला गया। फिर एक दूसरे डाकू ने पूछा तो मैंने उसे भी सच बताया, वो भी मजाक समझकर चला गया। जब वो दोनों अपने सरदार के पास पहुंचे तो ये सारा माजरा उसे सुना दिया। सरदार ने कहा, अच्छा, उसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। वो दोनों दौड़ कर आए और मुझे उसके पास ले गए। मैंने देखा कि वो एक टेले पर बैठकर माल तकसीम कर रहे थे। सरदार ने मुझसे पूछा, सच बता, तेरे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दीनार हैं। उसने कहा, कहाँ हैं दीनार? मैंने कहा, बगल के नीचे गदे में सिले हुए हैं। सरदार ने गदड़ी को उधेड़ कर देखा तो उसमें से 40 दीनार बरामद हुए। ये देखकर सरदार ने हैरानी से कहा, ऐ लड़के, तू जानता है कि हम लुटेरे हैं, जो माल हमें मिलता है उसे लूट लेते हैं। तूने हम लुटेरों के खौफ से उन दीनार को छुपा कर क्यों ना रखा? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी माँ ने चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ के पास भी ना भटकना। मैं कैसे वालिदा की नसीहत को छोड़कर 40 दीनार की खातिर झूठ बोल देता? ये सुनकर डाकुओं का सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने हसरत भरी सांस खींचकर कहा, तूने तो अपनी माँ का अहद नहीं तोड़ा और मैं कई सालों से अपने रब का अहद तोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो मेरे कदमों में गिर पड़ा और उसने मेरे हाथ पर तौबा कर ली। उसके साथियों ने ये हालत देखकर कहा, तू रहजनी में हमारा पेशवा था, अब तौबा में भी हमारा पेशवा है। सब ने मेरे हाथ पर तौबा की और काफिले का तमाम माल वापस कर दिया। ये पहली दफा थी कि लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तवील और खतरनाक सफर तय करके 488 हिजरी में बगदाद पहुँचे। वहाँ अलीमा व मशाइखा से मुलाकातें हुई। कुरान मजीद आप पहले ही हिफ्ज कर चुके थे। बगदाद में क़याम के दौरान तहरात व तजवीद दोबारा दोहराई। फिर मुख्तलिफ मशाइखा से इल्म सीखा और हदीस की तालीम में कमाल पाया। बगदाद में इल्म सीखने के दिनों में हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को तरह तरह की तकलीफ़ें और मुश्किलें पेश आई। वालिदा के दिए हुए 40 दीनार गालिबन रास्ते ही में खर्च हो गए। हजरत बयान करते हैं कि जब वो बगदाद पहुँचे तो 20 दिन तक ना खाने को कुछ मिला, ना कमाने का कोई रास्ता। भूख से बेहाल होकर वो ऐवान कसरा के सुनसान खंडरात की तरफ निकल गए कि शायद वहाँ गुजर बसर के लिए कुछ मिल जाए। वहाँ पहुँचे तो देखा कि 70 नेक बंदे भी उसी ज़रूरत से चीज़ें ढूंढ रहे हैं। हजरत ने दिल में कहा कि ऐसे लोगों के आगे बढ़कर छीना झपटी करना अच्छा नहीं, इसीलिए वापस बगदाद लौट आए। वापसी पर रास्ते में अपने वतन के एक आदमी से मुलाकात हुई जिसे वो पहचानते ना थे। उस शख्स ने कहा, ये कीमती धात के छोटे टुकड़े तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। हजरत ने उसमें से अपना थोड़ा सा हिस्सा अलग किया और बाकी सारा लेकर फिर उसी सुनसान जगह की तरफ गए और वहाँ मौजूद उन नेक बंदों में बांट दिया। इन्होंने पूछा, ये कहाँ से लाई हो? हजरत ने बताया, ये मेरी वालिदा ने मेरे लिए भेजा है। मुनासिब ना समझा कि अपने हिस्से से आप लोगों को महरूम रखूं। फिर हजरत बगदाद आए, अपने हिस्से से कुछ खाना खरीदा और शहर के गरीबों को बुला लिया। चुनाचा सब ने मिलकर खाना खाया। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक दफ़ा मुझे कई रोज़ तक खाना ना मिला। इत्तेफाक से मैं मोहल्ले कतिया शरीफा में चला गया। वहाँ एक शख्स ने एक मफहूफ कागज़ मेरे हाथ में दिया। मैं उसे लेकर एक बख्तबाल की दुकान पर आया और उसके एवज़ में
मैदे की रोटी और कबीस लेकर एक सुनसान मस्जिद में गया, जहां मैं तन्हा बैठकर अपने असबाग दोहराया करता था। मैंने वो खाना अपने सामने रखा और सोचने लगा कि खाऊं या ना खाऊं। इतने में मेरी नज़र एक मफहूफ कागज़ पर पड़ी जो दीवार के साए में था। मैंने उसे उठाया तो देखा कि उसमें लिखा है कि कुतुब साबिक़ा में से एक में अल्लाह ताला का इरशाद है, खुदा के शेरों को लज्जत और ख्वाहिश से क्या सरोकार। ख्वाहिश और लज्जत तो सिर्फ ज़ईफ़ और कमज़ोर लोगों के लिए है, ताकि वो उसके ज़रिए इबादत इलाही पर कादिर हों। ये पढ़ते ही मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। खौफ इलाही से लर्ज़ा तारी हो गया। मैंने फ़ौरन रुमाल लपेटा, रोटी वहीं छोड़ दी, मस्जिद के एक कोने में 2 रकात नमाज अदा की और वहाँ से चला आया। एक दफ़ा बगदाद में कहत पड़ा, जिसकी वजह से हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को निहायत तंगी और मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई रोज़ तक खाना नसीब ना हुआ, मगर गिरी पड़ी चीज़ें तलाश करके खा लेते और उसी पर गुजारा करते थे। एक रोज़ भूख की शिद्दत और बेताबी की वजह से वो दरियाए दजला की तरफ दौड़ते हुए चले गए, ताकि कहीं पत्ते या सब्जी वगैरह मिल जाए तो खा लें। मगर जहाँ भी जाते वहाँ पहले से लोग मौजूद होते। अगर कोई चीज़ मिलती भी तो उस पर फुकरा का हुजूम होता। वो उनसे मज़ाहमत करना पसंद ना करते। आखिरकार शहर की तरफ लौट आए, मगर यहाँ कभी कोई गिरी पड़ी चीज़ दस्तयाब ना होती। भूख से बेचैन होकर गली कूचों में मारे मारे फिरते रहे। फिर यूं ही फिरते फिरते रहीनी मस्जिद के करीब पहुँचे तो उस वक्त भूख से बिल्कुल बेताब हो गए। दिमाग चकराने लगा, होश व हवास गुम होने लगे। बेहोशी तारी हो गई और आँखों के आगे अंधेरा छा गया। उसी परेशानी के आलम में दौड़कर मस्जिद के कोने में जा बैठे। उसी असना में एक अज़मी जवान मस्जिद में नान और भुना हुआ गोश्त लेकर आया और खाने लगा। गालिबन भूख की वजह से ये कैफियत हुई कि जब वो खाने के लिए लुक़मा उठाता तो बेइख्तियार उनका मुंह खुल जाता। हत्ता कि उन्होंने अपने नफ्स को इस नाज़ेबा हरकत पर मलामत की और फरमाया, ऐ नफ्स, भरोसा और तवक्कल भी आखिर कोई चीज़ है, ऐसी बेसब्री की क्या मायने। इतने में अचानक उस अज़मी जवान की नज़र उन पर पड़ी। देखते ही उसने कहा, भाई आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हजरत ने इनकार किया, लेकिन उसके बहुत इसरार ने उन्हें खाने पर आमादा कर लिया। अभी उन्होंने थोड़ा सा खाया था कि वो जवान उनसे उनकी हालत दरियाफ्त करने लगा कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या मशगला रखते हैं। हजरत ने बताया कि वो जीलान के रहने वाले हैं और इल्म फ़िक़्ह पढ़ते हैं। ये सुनकर उसने मसरत आमेज़ लहजे में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी जीलान का रहने वाला हूँ। उसने पूछा, क्या आप एक जीलानी नौजवान अब्दुल कादिर को जानते हैं? हजरत ने बताया कि वही अब्दुल कादिर हैं। ये सुनते ही वो घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बेचैनी और इज़्तिराब में उसने कहा, भाई खुदा की कसम, मैं कई रोज़ से आपको तलाश कर रहा हूँ। जब मैं बगदाद पहुँचा तो उस वक्त मेरे पास अपना ज़ाती सामान मौजूद था, मगर जब मैंने आपकी तलाश व जुस्तजू की तो किसी से आपका सुराग न लगा। मेरा नानो नफ़का ख़त्म हो गया। 3 दिन मैंने भूखी हालत में गुजारे। जब मुझे तीसरा फाका हुआ तो मैंने आपकी अमानत से एक वक्त के खाने के दाम निकाल कर ये खाना खरीद लिया। अब आप खुशी से ये खाना तनावुल फरमाइए। ये आप ही का खाना है और मैं आपका मेहमान हूँ। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हैरानी से दरियाफ्त किया, ये क्या माजरा है? उसने जवाब दिया, आपकी वालिदा ने आपके लिए मेरे हाथ 8 दीनार भेजे थे, जिनमें से शिद्दत अफाका की वजह से मैंने ये खाना खरीदा। ये मैंने आपकी अमानत में बड़ी कोताही की है, जिस पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ सुनकर हजरत ने उसे दिलासा दिया। फिर दोनों ने बचा हुआ खाना खाया और उसके बाद हजरत ने उसे कुछ दीनार देकर रुखसत कर दिया। एक दिन वो सहरा में एक जगह बैठे सबक दोहरा रहे थे। अफलास और फाखा कशी से दिल बोझल था कि अचानक गैब से आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर, खाने पीने के लिए कर्ज ले लो ताकि इल्म हासिल करने में रुकावट ना आए।
انہوں نے عرض کیا، میں کس منہ سے قرض لوں؟ میں تو مفلس ہوں، جبہ تک نہیں، قرض کیسے چکا پاؤں گا؟ جواب آیا، مطمئن رہو، قرض ادا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ یہ سن کر وہ ایک نان بھائی کے پاس گئے اور کہا، مجھے اس شرط پر روز 1.5 روٹی قرض دے دیا کرو کہ اگر مجھے کہیں سے کچھ مل گیا تو ادا کر دوں گا، اور اگر میں مر گیا تو مجھے معاف کر دینا۔ نان بھائی یہ سن کر رو پڑا اور بولا، حضرت آپ کو اجازت ہے، جب چاہیں مجھ سے لے لیا کریں۔ چنانچہ وہ ایک مدت تک روزانہ 1.5 روٹی وہیں سے لیتے رہے۔ پھر ایک دن دل میں خیال آیا کہ کھاتا تو جا رہا ہوں مگر ابھی تک کچھ ادا نہیں ہوا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، فلاں دکان پر جاؤ، وہاں سے جو چیز ملے وہ نان بھائی کو دے دو، اسی سے اس کا پورا حساب ادا ہو جائے گا۔ وہ اس دکان پر گئے تو وہاں موجود دکاندار نے آپ کو ایک تھیلی دی۔ آپ اسے اٹھا کر نان بھائی کے پاس لے آئے اور اس کے سپرد کر دی۔ اس چیز کی قیمت قرض سے کچھ زیادہ نکلی۔ انہوں نے نرمی سے کہا کہ قرض پورا سمجھا جائے اور جو زیادہ ہے اسے یا تو فقراء پر خرچ کر دے یا آئندہ کی روٹیوں میں حساب برابر کر لے۔ یوں نان بھائی کا سارا قرض اتر گیا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اہل بغداد کی ایک جماعت علم فکر میں مشغول تھی۔ جب غلے کے دن آتے تو یہ لوگ یعقوب نامی ایک گاؤں میں اناج مانگنے چلے جاتے اور وہاں سے کچھ غلہ وصول کر لاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ چونکہ اس وقت میں کم سن تھا اسی لیے میں بھی ان کے ہمراہ ہو لیا۔ اس وقت یعقوب ایک نہایت متقی اور پرہیزگار شخص تھا جسے شریف یعقوب کے نام سے پکارتے تھے۔ میں اس کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ دوران گفتگو اس نے مجھ سے کہا کہ طالب حق کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ پھر اس نے خصوصیت کے ساتھ مجھے سوال کرنے سے منع کیا۔ اس کے بعد سے میں کسی جگہ مانگنے نہیں گیا اور نہ ہی میں نے کسی سے سوال کیا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، مجھ پر بڑی بڑی ناقابل برداشت سختیاں گزری۔ اگر وہ سختیاں پہاڑ پر گزرتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ جب مصائب، سختیاں اور صحبت چاروں طرف سے مجھے احاطہ کر لیتی تو میں تنگ آ کر زمین پر لیٹ جاتا اور بار بار آیت کریمہ پڑھتا رہتا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب میں زمین سے سر اٹھاتا تو میری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کی ایک مسجد سے باجماعت نماز ادا کر کے باہر تشریف لائے۔ آپ کے مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس محلے میں کچھ بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حالانکہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے تھے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے اور بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدوں کی ایک بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کیا اور اشاروں میں باتیں کرنے لگے۔ بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس جماعت میں جو سب سے نمایاں اور نورانی چمکتے چہرے والے بزرگ سب سے آگے چل رہے ہیں، ان سے ہمیں کچھ فرمائش کرنی چاہیے۔ چند بچوں نے ڈر سے کہا کہ یہ بزرگ ہمیں ڈانٹیں گے، لیکن کچھ سمجھدار بچوں نے کہا کہ ہم اس بزرگ کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، چلو ان سے کچھ فرمائش کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تمام بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ان سے اپنی من پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز مانگتے ہیں جو بہت میٹھی اور لذیذ ہو۔ پھر سب کی متفقہ رائے سے ان میں سے ایک بچہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور اعلیٰ میری بات سنیں۔ حضور غوث اعظم نے اس بچے سے بہت پیار کیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے فرزند، جو بات بھی کہنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو۔ بچے نے کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا، کہو بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ بچہ بولا، کیا آپ مجھے فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں؟ میرا جلیبی کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، میں خود چلا جاتا
लेकिन खेल में मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वापस आऊँगा मेरी बारी चले जाएगी। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के सबसे बड़े वली थे। आपकी खिदमत में आपके नौकर बनने के लिए लोग जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। उधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप कौन सी शख्सियत हैं। फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर वो बच्चा आपसे कहने लगा, हजरत मुझे आप जलेबी लाकर दें। आपने फरमाया, ठीक है मैं लाकर देता हूँ। ये मंजर देखकर आपका एक मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हजरत आप क्यों उस बच्चे की बातों पर तवज्जो दे रहे हैं? आप क्यों उस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं? हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान, मैं उस बच्चे को जलेबी लाकर देता हूँ। हुजूर गौसे आजम ने उसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और फरमाया, उसने मुझसे कहा है तो मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। फिर आप उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा था। जब आप उसकी दुकान पर तशरीफ ले गए तो वो खुशी से झूम उठा। फिर आपने उससे जलेबी खरीद ली। उसने भी खुशी खुशी आपके हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी तकरीबन 70 साल का था और उस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आपको देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली कि आपने मेरी दुकान पर कदम रखा। मैं कई दिनों से आपके इंतजार में था। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, तुम्हें कैसे पता था? वो शख्स कहने लगा, हजरत कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। मेरे घर में फाका तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी। उस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी है लेकिन उनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी उस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहाँ एक फकीर है, उससे दुआ करो। वो जिसके लिए भी दुआ करता है उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फकीर से मिलने चला गया। उसे तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, मेरे रिस्क में बरकत हो जाए और तंगी दूर हो जाए ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। फकीर ने मेरी हालत देखकर कहा, दुआ करता हूं और तुम अपने शहर बगदाद लौट जाओ। बगदाद ही में एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह ने उनकी दुआ में कबूलियत रखी है, उनसे भी दुआ कराओ। मैं सख्त परेशान था सो इस फकीर के मशवरे पर फौरन बगदाद वापस आ गया। यहाँ आपकी तलाश शुरू कर दी। आज देखो कि आप खुद ब खुद मेरी दुकान पर तशरीफ लाए। वो आंसुओं के साथ कहने लगा, हुजूर मेरे हक में दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान कर दे। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की बहुत फिक्र है। ये सुनकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम मामलात दुरुस्त कर देगा। ये कहकर आप वहाँ से तशरीफ ले गए और उस बच्चे के पास आए, उसके हाथ में जलेबी दी। अभी आप वहाँ से जाने वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आ गया और कहने लगा, हजरत आपने उसे जलेबी लाकर दी, मुझे भी जलेबी लाकर दें। आपने फरमाया, ठीक है मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर देता हूँ। ये देखकर मुरीद बहुत गुस्से में आए और कहने लगे, हजरत आपने एक बच्चे के लिए ये काम कर दिया, आपका मर्तबा बहुत बुलंद है। आपके काम करने वाले तो हम हैं, हम उस बच्चे को जलेबी ला कर देंगे। लेकिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं और मैं उनका कहा नहीं टाल सकता। मुरीद कहने लगे, हुजूर आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं, आप उन छोटे बच्चों की बातों को क्यों सुन रहे हैं? हुजूर गौसे आजम ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है हम वही काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर जितनी बार बच्चों ने आपको जलेबी लाने के लिए कहा आप उनके लिए जलेबी लाते रहे, हत्ता के आखिरी बच्चे को भी आपने जलेबी ला कर दी। बच्चे खुशी से जलेबी खाने लगे और आपको दुआएं देने लगे और कहने लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने जैसा आपके बारे में सुना था
आप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। आप जितने सखी हमने सुना था उससे भी ज्यादा सखी हैं। हम आपसे बहुत खुश हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर मुस्कुरा दिए। बच्चों की खुशी देखकर आपको दिली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आपने मुरीद से कहा, चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चलते हैं। फिर सब मिलकर मस्जिद चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। कई दिन गुजर गए, लेकिन आपके मुरीद अभी तक इस सोच में थे कि आपने बच्चों की बात क्यों मानी और उस पर इतनी अहमियत क्यों दी, क्योंकि वो आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को देखते थे। अगर वो आपको कोई ऐसा अमल करते देखते जिसकी उन्हें समझ ना थी, तो उनके जहन में कई सवालात उठते थे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ये बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि कुदरत की तरफ से उन्हें जवाब मिल जाएगा। चुनाचा कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा जलेबी वाला हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने अपने सर पर जलेबी का टोकरा रखा था और वो बहुत खुश नजर आ रहा था। जलेबी वाला बारगाह गौसिया में पहुंचा और हुजूर की खिदमत में जलेबी का टोकरा पेश करते हुए कहने लगा, हजरत, आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई। सब मुरीद वहाँ बैठे थे। जलेबी वाले ने कहा, जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, तो आपने मेरे हक में दुआ फरमाई और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे तमाम मामलात बेहतर कर दिए हैं। उस दिन से मेरी दुकान में बरकत हो गई। यकीन जानिए, उससे पहले मेरी दुकान पर एक भी जलेबी खरीदने वाला नहीं आता था, लेकिन अब आपके आने की बरकत से मेरी दुकान से लोग खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक लोग जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं कि उस शहर में उससे ज्यादा लजीज जलेबी हमने पहले कभी नहीं खाई। मेरे हाथ की बनाई हुई जलेबी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और उसे खाकर बहुत खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली कि अब मैं रिस्क बांटने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सब आपकी दुआओं की बदौलत हुआ। अब आप ये जलेबी खुद भी खाएं और अपने मुरीदों में भी तकसीम कर दें। उसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी जलेबी खाने लगे और आपने खुद भी जलेबी तनावुल फरमाई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें ये ताकत दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक सब ये मानते हैं कि अगर वो हमारे पास आकर दुआ करवाएं तो अल्लाह ताला उस दुआ को सुनता है, उस बंदे का कहा नहीं टालता और उसके मुश्किल हालात को टाल देता है। मुरीद अब ये बात समझ गए कि आपने बच्चों की बात क्यों मानी और उसे इतनी अहमियत क्यों दी, क्योंकि अब बूढ़े की मदद के लिए आपने ये सब किया था। वसीला वो मासूम बच्चे बने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को बरकत की वजह से उसकी दुकान पर भेजा। सुभान अल्लाह। अगर आपको हजरत गौसे आजम के वाक़यात दिल को छू गए हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए और अपनी एक ख़ास ख्वाहिश दुआ भी तहरीर कीजिए ताकि हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सफ़वान इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।